ਹੈਲੋ एवरीवन, ਉਮੀਦ ਆ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਗਰੈਂਜੀਅਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਇਨਕਲੂਡਡ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲੈਗਰੈਂਜੀਅਨ ਆਫ ਡਬਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਿਦ ਚਾਰਜ ਈ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਡਬਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਲੈਗਰੈਂਜੀਅਨ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਲੈਗਰੈਂਜੀਅਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਗਰੈਂਜੀਅਨ ਆਫ ਡਬਲ ਪੈਂਡੂਲਮ। ਲੈਗਰੈਂਜੀਅਨ ਆਫ ਡਬਲ ਪੈਂਡੂਲਮ। ਡਬਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਰਿਜਿਡ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜਿਡ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਥਰੈਡ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੌਬ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਬੌਬ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਨ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਬੌਬ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਂਡੂਲਮ ਆ ਗਏ, 2 ਪੈਂਡੂਲਮ ਆ ਗਏ, 1 ਤੇ 2, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਬੌਬ ਦਾ ਮਾਸ m1 ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਦਾ m2 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਆ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਆ। ਜੋ ਫਸਟ ਥਰੈਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ L1 ਆ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਦੀ L2 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਗਰੈਂਜੀਅਨ। ਲੈਗਰੈਂਜੀਅਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਲੈਗਰੈਂਜੀਅਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ T ਮਾਈਨਸ V। T ਮਾਈਨਸ V, T ਇਜ਼ ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ, V ਇਜ਼ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 2D ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ 2D ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਆਹ ਸਾਡਾ θ1 ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਹੋਰ ਡਰਾ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ θ2 ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ 2D ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਫ mx ਡਾਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ y ਡਾਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 2 ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਵਰਆਲ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, m1 ਮਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। T ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਫ m1 ਮਾਸ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ x1 y1, m2 ਦੇ x2 y2, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੇਅਰ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਸ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ x2 ਤੇ y2 ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੇ, ਤੇ x1 ਡਾਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ y1 ਡਾਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ ਹਾਫ m2 x2 ਡਾਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ y2 ਡਾਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਨੀਚੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mgh, ਮਾਈਨਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਪੈਂਡੂਲਮ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਾਸ m1 ਦੇ ਲਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, m1 g h1 ਅਸੀਂ ਹਾਈਟ ਇੰਨੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ h1, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਸੈਕਿੰਡ h2 ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, h2 ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਾਈਟ ਆ, ਹੇਠਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਮਾਸ m1 ਨੀਚੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜੋ ਮਾਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਤਾਂ ਮਾਸ m2 ਆ, g h2 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
स्टूडेंट्स हुण असीं की करांगे, साडा नैक्सट मकसद की है, मकसद साडा इस नूं सारे सिस्टम नूं असीं पोलर प्लेन पोलर कोआर्डीनेट दे विच स्टडी करांगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सानूं सिस्टम स्टडी करना उहदे विच सौखा हो जाऊगा। वैसे तुहानूं दस्सिया सी स्टडी असीं कार्टेशियन कोआर्डीनेट दे विच भी कर सकते हैं, बट उहदे विच सानूं ये सौखा हो जाना, ठीक है। इस करके सारी किनेटिक एनर्जी ते पोटेंशियल एनर्जी नूं असीं अपने प्लेन पोलर कोआर्डीनेट दे विच मतलब कि θ1 θ2 ते L1 ते L2 दे विच लैके आउणे आ, ठीक है। थर्ड हुण जे इन्हां दे विच असीं कन्वर्ट करना, फिर सानूं x1 x2 y1 y2 ते h1 h2 ये सारियां चीज़ां दीयां वैल्यूज़ चाहिदियां होणगीਆਂ, ठीक है। हुण असीं की कड्ढण जावांगे, असीं x1 की वैल्यू कड्ढांगे, आह वाले दी y1 की, x2 की y2 इन टर्म्स ऑफ θ1 θ2, ठीक है। देखो हुण पहला तो सब तो पहला असीं x1 की वैल्यू बन्नी वधदे हां। x1 की वैल्यू मतलब कि यह इत्थों राइट बन्नी नूं गया होया मास इत्थों इन्ना, ठीक है। इत्थों असीं परपेंडिकुलर डिग गया तो इत्थे जाके कट करेगा तो इत्थों तो लैके इत्थे तक जो x1 होएगा इन्ना, ठीक है। तो उस तो y1 कितना होएगा, h1 जिन्ना ही साडा y1 होएगा, h1 इज इक्वल टू y1, ठीक है। क्योंकि इनू असी हुण आ जो लेंथ L1 आ इनू असीं रिजोल्व करांगे इन दी फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स दे विच, ठीक है। इत्थे एंगल θ1 लगा होया, जदों असीं इनू रिजोल्व करदे हुंदे आ स्टूडेंट्स, फिर किदां रिजोल्व हुंदा जिस साइड बन्नी θ लग्या हुंदा उस साइड नूं असीं cos θ लगाउने आ, L1 cos θ1, ये साडे कोल इन्नी लेंथ आ गई है, ठीक है। ये है साडे कोल इन्नी लेंथ आ गई है, मीनस y1 आ गया, मीनस h1 आ गया, तीनों चीज़ां आ गई ने, ठीक है। हुण साडा मकसद की है, x1 भी कटना, x1 कितना है साडा L1 sin θ1, ठीक है। ये दोनों रिजोल्व हो गया। सिमिलरली असीं आ चीज़ नूं रिजोल्व करांगे, जदों इत्थों रिजोल्व करिया पहलां असीं इत्थे रिजोल्व करदे इहनूं, मान लो इत्थे तक, ठीक है, इत्थों इत्थे तक। हुण आ लेंथ L1 आ, ठीक है, रेड यूज़ करदे आ, ते θ2 एंगल है, तो इत्थे साडे कोल कितनी आनियां L2 cos θ2, ठीक है। आ वाली कितनी आ जानी है L2 sin θ2, ठीक है भी। हुण इहो चीज़ां असीं इधरों डिस्प्लेस कर देने थोड़ियां, मतलब इत्थों इनू चक के इन्नी इत्थे लेके जाइए तो आ वाली लेंथ साडे कोल इत्थों ते इत्थे तक कितनी हो जानी है, ये वाली L2 cos θ2, L2 cos θ2, ठीक है भाई। हुण आ वाली चीज़ नूं असीं उपर लेके जाते हैं, इत्थे ले जाएंगे, इत्थों ते आ वाली ये की हो जानी है L2 sin θ2। हुण साडे कोल सारा मसला लगभग सॉल्व हो गया, बस इत्थे ही थोड़ी उलझन सी, उलझन भी की कह सकते हैं जे अंडरस्टैंडिंग हैगी है तुहाडी, कोई बड़ा मसला नहीं है इहदे विच, ठीक है। हुण देखो साडे कोल h1 की वैल्यू भी आ गई है, h2 की भी आ गई है, x1 x2 ते y2 है ना, सारियां दियां सारियां वैल्यूज़ कढ सकते हैं असीं इत्थों। हुण देखो सब तो पहलां असीं हुण x1 ही वधदे हां, x1 इज़ इक्वल टू इत्थों साफ क्लीयर है, x1 इज़ इक्वल टू L1 sin θ1, L1 sin θ1, ठीक है। y1 इज़ इक्वल टू y1 कित्थे पिया साडा, y1 इज़ इक्वल टू h1 तो अपने कोल कितना आ गया है L1 cos θ1, L1 cos θ1, ठीक है भी। उस तो बाद असीं होर वेखदे हां x2 इज़ इक्वल टू x2 वेखो कित्थे पिया साडे कोले, x2 स्टूडेंट्स आ पिया साडे कोल, x2 इत्थों तो लैके आ वाली रेड लाइन तो y एक्सिस तो लैके M2 पॉइंट तक मास पिया, उन्नी लेंथ है, ठीक है। मतलब कि इन्नी लेंथ है, इनू असीं उपर नूं प्रोसीड करवाउणे आ, इन्नी लेंथ आ, इन्नी कितनी आ L1 sin θ1 प्लस L2 sin θ2, ठीक है। x2 इज़ इक्वल टू L1 sin θ1 प्लस L2 sin θ2, ठीक है। सिमिलरली असीं y2 कर लेने, y2 इज़ इक्वल टू मतलब कि x एक्सिस तो नीचे नूं कितना आया असीं, ठीक है, नीचे नूं मतलब कि इन्ना आया, इन्ना यह किहदे इक्वल आ, अपनी आ चीज़ दे इक्वल आ इन्ना, ठीक है। इत्थों तो लैके इत्थे तक ये कितनी आ L1 cos θ1 प्लस L2 cos θ2, सानूं आ दोनों पार्ट्स दे विच लेंथस पता, ठीक है। आ पार्ट का पता, इन्हां दा पता, दोनों नूं असीं प्लस कर देंगे तो सारी आ जानी है साडे कोल, वो कितनी होनी है y2 दे इक्वल होनी है, h2 इज़ इक्वल टू y2 भी लिख सकते हैं इत्थे, ठीक है। h1 इज़ इक्वल टू y1, इत्थे असीं h1 भी लिख रहे हैं, h1 इज़ इक्वल टू y1 तो h2 इज़ इक्वल टू इदां लिख रहे हैं, सानूं सौखा हो जाऊगा, ठीक है। तो L2 cos θ2 प्लस L1 cos θ1, ठीक है। हुण साडे कोल सारियां दी सारियां लेंथस आ गई, साडे कोल x1 आ गया, y1 आ गया, x2 आ गया, y2 आ गया, h1 आ गया, h2 आ गया, ठीक है। हुण सब तो पहलां असीं पोटेंशियल एनर्जी का काम निबेड़ दिंदे आ। पोटेंशियल एनर्जी का काम किदां निबड़ूगा, असीं h1 ते h2 दी वैल्यूज़ पुट कर देने उत्थे, साडे कोल पोटेंशियल एनर्जी की फाइनल वैल्यू आ जानी है, v इज़ इक्वल टू माइनस द m1 g, h1 की वैल्यू कितने, h1 इज़ हेयर L1 cos θ1, L1
cos थीटा 1 ठीक है भी आ माइनस उही वाली आनी है M2 G H2 की वैल्यू आ वाली है ठीक है इनू असी पहला ब्रैकेट के लिखते हैं L2 cos थीटा 2 प्लस L1 cos थीटा 1 ठीक है भी हुण आ चीज़ M2G नूं असी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ये भी तो ये भी ठीक है जो अंदर नाल मल्टीप्लाई करिए आ ब्रैकेट खत्म हो गई आ माइनस के नाल इत्थे अंदर गया प्लस के नाल ये माइनस हो गई तो M2 G L1 cos थीटा 1 साढ़े कोल की आ गई है पोटेंशियल एनर्जी आ गई ठीक है हुण ये पोटेंशियल एनर्जी नूं असीं साइड ते कर देने क्योंकि हुण सानूं इहदी एंड ते जाके लोड़ पैनी आ V इज़ इक्वल टू माइनस M1 G L1 cos थीटा 1 माइनस M2 G L2 cos थीटा 2 माइनस M2 G L1 cos थीटा 1 ये साढ़े कोल की है पोटेंशियल एनर्जी है ठीक है बाय चांस साढ़े कोल रेज भी हो जाए असीं उत्थे देख सकते हैं ठीक है पोटेंशियल एनर्जी का इत्थे दा काम निबड़ गया हुण साडा मकसद की है किनेटिक एनर्जी कढ़ना किनेटिक एनर्जी के देखो डॉट्स ने x1 डॉट y1 डॉट x2 डॉट y2 डॉट बट अपने कोल की प्रेजेंट है x1 x2 y1 y2 ठीक है फिर असीं इहदा की करांगे असीं इहदे डॉट्स कढ़ लांगे डॉट्स कढ़ो x1 डॉट इज़ इक्वल टू डॉट का मतलब की होंदा डेरीवेटिव करना होंदा कद नाल t नाल हुण लेंथ साडी L1 तक कॉन्सटेंट आ तां बाहर ही रह जानी है साइन थीटा का cos थीटा बन गया cos थीटा 1 तो थीटा का डेरीवेटिव थीटा 1 डॉट ठीक है x1 डॉट आ गया तो x2 डॉट इज़ इक्वल टू y1 डॉट करते हैं y1 डॉट इज़ इक्वल टू L1 माइनस साइन थीटा का जो cos थीटा सॉरी डेरीवेटिव करांगे माइनस आउंदी हुंदी है साइन थीटा 1 डॉट ठीक है भाई हुण x2 डॉट करते हैं x2 डॉट इज़ इक्वल टू L1 उदा ही cos थीटा 1 साइन थीटा का cos थीटा 1 डॉट तो प्लस उदा ही L2 साइन थीटा का cos थीटा 2 तो थीटा 2 डॉट ठीक है भाई हुण असी y2 डॉट इज़ इक्वल टू L2 सॉरी cos थीटा का माइनस साइन थीटा 2 डॉट ठीक है भी तो इत्थों मैं थोड़ा डायरैक्ट करदा क्योंकि cos थीटा जो डेरीवेटिव करांगे माइनस आएगी माइनस L1 cos थीटा डेरीवेटिव साइन थीटा 1 डॉट ठीक है हुण साडे कोल सारियां दी सारियां वैल्यूज़ आ गई ने डॉट दियां x1 डॉट y1 डॉट x2 डॉट y2 डॉट साडा मकसद अगला की स्टैप होएगा असीं उहदे विच वैल्यूज़ पुट कर देनियां ने ठीक है t इज़ इक्वल टू मैं थोड़ा जिहा स्टैप्स कट करांगा क्योंकि तुहाडा लैवल MSc तुसीं कर चुके हो जे अगर ये वीडियोज़ वेखदे पे हो जां MSc करदे पे हो ठीक है तुसीं ग्रैजुएशन कर चुके हो मतलब कि तुहाडा लैवल है ठीक है M1 x1 डॉट का स्केयर आ पिया इन्हां दा दोनों का स्केयर करना तीनों टर्म्स का L1 का स्केयर cos स्केयर थीटा 1 डॉट का स्केयर प्लस y1 डॉट का स्केयर y1 डॉट कित्थे आ पिया ठीक है जो इसका स्केयर करेंगे बाहर माइनस पई माइनस का प्लस हो जानी है L1 का स्केयर साइन स्केयर थीटा 1 डॉट का स्केयर ठीक है भाई हुण देखो अगे असीं वधदे हां अगे की है हाफ M2 प्लस हाफ M2 x2 डॉट का स्केयर x2 डॉट साडे कोल आ पई है ठीक है x2 डॉट साडा n आ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਕੇਅਰ ਕਰਨਾ मतलब कि होल स्केयर होएगा होल स्केयर का मतलब a प्लस b का होल स्केयर हूँ मैं इतों डायरैक्ट फार्मूला खोल के लिखांगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab ठीक है इतों तुसां ने समझ लेना हूँ इतों कोशिश करते हैं असीं करन दी इतों a का स्केयर मतलब आ वाली का स्केयर सारे का L1 का स्केयर प्लस cos स्केयर थीटा 1 डॉट का स्केयर हूँ b का स्केयर करना असीं b का इतों थोड़ा जिहा ब्लैक यूज़ कर लेने क्योंकि ये मिक्स हो जू L2 स्केयर cos स्केयर थीटा 2 डॉट द स्केयर ठीक है प्लस 2ab वाला प्लस 2ab दोनों लिखाएं इकट्ठे cos थीटा 1 डॉट L2 cos थीटा 2 डॉट ठीक है भाई हुण देखो अगे की आ अगे y2 डॉट का स्केयर y2 कित्थे साडे कोले y2 साडे कोल आ पई आ ये हुण दो टर्म्स का प्लस है ठीक है इनू असीं इदां लिखते हैं हाँ माइनस बाहर कढ़ लेने
सौखा हो जाऊगा, ए प्लस बी ही बन जाना, ठीक है। आ माइनस स्केयर नाल प्लस हो जानी है। तो हुण जो इहदा स्केयर करांगे उही सेम कंडीशन आ इत्थे प्लस हो जानी है, ए प्लस बी दा होल स्केयर, मतलब ए दा स्केयर प्लस बी दा स्केयर प्लस 2ab, ठीक है। हुण असीं करदे हां L2 दा स्केयर साइन स्केयर थीटा 2 डॉट दा स्केयर प्लस L1 दा स्केयर साइन स्केयर थीटा 1 प्लस सॉरी इंटू थीटा 1 डॉट दा स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर हो गया प्लस 2ab L1 L2 साइन स्केयर साइन थीटा 2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट। बिल्कुल सौखा, कोई एडा वड्डा मसला नहीं है, ठीक है। उलझना नहीं है, तुसी बस रीअरेंजमेंट ही है। हुण असीं अगे नूं थोड़ा इरेज कर लीए। हुण देखो स्टूडेंट्स, T इज़ इक्वल टू हाफ M1, उस तो बाद आ साडे कोल कॉमन है तो आ भी कॉमन है, थीटा 1 कॉमन है, थीटा 1 डॉट का स्केयर कॉमन है। अंदर की बच जाना कॉस स्केयर थीटा 1 प्लस कॉस साइन स्केयर थीटा 1 की हो जाना 1 हो जाना। इतों साडे कोल L1 का स्केयर थीटा 1 डॉट का स्केयर प्लस सिमिलरली इत्थे होएगा, इत्थे साडे कोल प्लस नहीं आएगा। आ चीज़ां दोनों कॉमन ने, ते असीं जदों बाहर कड्डांगे ਇਹਦਾ अपना L1 स्केयर कित्थे पिया, L1 स्केयर आ पिया, L1 स्केयर आ पिया साडे कोल, थीटा 1 डॉट का स्केयर आ पिया। इनू असीं इहदे नाल है ना कॉमन कड्डांगे तो साडे कोल अंदर कॉस स्केयर थीटा 1 तो साइन स्केयर थीटा 1 बच जाना, तो साडे कोल 1 बन जाना, ठीक है। हाफ M2 उदां ही रहेगा प्लस हाफ M2 असीं आ L1 का स्केयर कॉमन लवांगे तो थीटा 1 डॉट का स्केयर ये बाकी 1 बन जाना। साडी आ टर्म भी सॉल्व हो गई है तो आ वाली भी सॉल्व हो गई है। सैकेंड वाली देखते हैं L2 स्केयर कित्थे पिया, L2 स्केयर आ पिया साडे कोले, L2 स्केयर इत्थों तो थीटा 2 डॉट का स्केयर इत्थों, तो दोनों नूं जदों कॉमन कड्डांगे बाहर इत्थे साइन स्केयर थीटा 2 पिया, कॉस स्केयर थीटा 2 पिया, की बन जाना 1 बन जाना, ठीक है। फिर साडे कोल सिंपली L1 L2 स्केयर थीटा 2 डॉट का स्केयर इहो बच जाना, ठीक है। हुण साडे कोल आ टर्म भी सॉल्व हो गई है तो आ वाली भी सॉल्व हो गई, बच साडे कोल किहड़ी गई आ वाली, ठीक है। दो टर्म्स बच गई। इन्हां विच कॉमन देखो 2 पिया, इधर भी 2 पिया, L1 L2 पिया, L1 L2 पिया, ठीक है। थीटा 1 डॉट पिया, थीटा 2 डॉट पिया, थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट पिया, ठीक है। ये सारियां दी सारियां चीज़ां कॉमन आ जानियां ने, असीं कॉमन कड्ढियां 2 L1 L2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट, अंदर की बजाय स्टूडेंट्स इतने कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ठीक है भाई। हुण देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साडे कोल ए बी फार्मूले हुंदे ने, तां इत्थे मैं की लिख सकदा डायरैक्ट इत्थे कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी थीटा 1 माइनस थीटा 2, असीं इदां इत्थों लिख सकते हैं फार्मूला यूज़ करके, ठीक है। हुण साडे कोल स्टूडेंट्स ये हैगी कनेटिक एनर्जी, पोटैंशियल एनर्जी साडे कोल वो पई ही सी, ते हुण असीं लैग्रैंजियन कड्डांगे। लैग्रैंजियन की हुंदा, लैग्रैंजियन इज इक्वल टू टी माइनस वी, ठीक है। इत्थे असीं लैग्रैंजियन लिखदे हां एल इज इक्वल टू ये टी, असीं टी दी वैल्यू पुट कर ली है, माइनस आ वाली आएगी तो फिर असीं पोटैंशियल एनर्जी पुट कर देनी है। आ वाली माइनस इनू जाके प्लस करेगी M1 G L1 cos थीटा 1, ठीक है। ये जी माइनस थी ये सारिया दियाँ माइनस में प्लस कर देगी, तो सारिया दी सारिया टर्म्स ने जो ऐड हो जानिया ने, ठीक है। तो उस बाद प्लस M2 G L2 cos थीटा 2 प्लस M2 G L1 cos थीटा 1, ये साडे कोल की आ गया डबल पेंडुलम दा लैग्रैंजियन आ गया, ठीक है। हुण एक छोटी जी प्रॉब्लम होर थी वो तुहानूं मैं दसदा स्टूडेंट्स। वैसे तो टॉपिक अपना इलैक्ट्रोडायनामिक्स का थोड़ा मैं करवा देना, ये डायरैक्ट क्वेश्चन आ जाता होंदा वैन ए पार्टिकल विद चार्ज ई इन मैग्नैटिक फील्ड, मैग्नैटिक एंड इलैक्ट्रिक फील्ड, जो कोई पार्टिकल स्टूडेंट्स चार्ज ई तो मास असी एम कह सकते हैं, मास एम मास एंड मास एम
ਕੈਪਟਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਗਰੈਂਜੀਅਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੈਗਰੈਂਜੀਅਨ ਹੋਏਗਾ L = ਹਾਫ mv² ਪਲੱਸ E A ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ V ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ E φ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, φ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵੈਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਟਾ ਦੱਸਦਾ A = ਵੈਕਟਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, φ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੇਲਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆ ਕੀ ਹੋਗੀ ਸਾਡੀ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨੂੰ E ਨੂੰ ਮਾਸ m ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਲੈਗਰੈਂਜੀਅਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।